All know that whether rich or poor parents, they both want to send their children in the private schools. Not only this, even a rickshaw puller also want to send their children in a private school. Whether this private school is of substandard quality, but they prefer private schools. Why? Because there are a number of reasons behind this, and I think the most important reason behind this is private schools are English medium schools, and today parents know the importance of English, so they prefer the private schools. And in private schools, medium of learning is in English, mode of communication is in English, and these private schools inculcate English in the daily life of the children, and that is why parents prefer private schools, because no one can ignore the importance of English language today. Second reason is, I think, about the facilities, because every parent wants their children should get the better facilities, and those who have studied in the private schools, they know private schools have better infrastructure, they provide the better facilities. For example, you can see they have a big playground, fresh toilets, fresh washrooms, proper electricity, proper classrooms, fine desks, chairs, benches, proper security arrangement, and they have the smart classrooms, libraries, science lab, computer lab, everything. And all these facilities are very, very important for the overall development of the child and the students. And while we see in the public schools, all these facilities are either very, very less or they are completely absent. Also, they taught students in the regional languages. Another reason is private schools pay attention to the discipline of the children. They regularly check nails of the students, dress whether it is clean or not, whether the students have put on their identity card or not, whether the students' shoes are polished or not. So this adds the values in the students. They organize the parent-teacher meetings at regular intervals so that they can interact with the parents of their parents, and they communicate with the. आपने कहा कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, रिक्शा पुलर हो या कोई भी हो, वो प्राइवेट स्कूल चाहता है. But the scenario is going to change as Delhi government improving the government schools. Now अमीर, गरीब, रिक्शा पुलर वो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन ले, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज अब तो उससे भी ज्यादा प्राइवेट स्कूल में जितनी प्रोवाइड की जा रही उससे भी ज्यादा अच्छी हो रही है. और बाद में आगे चल के वही पेरेंट्स जो होते हैं फिर बाद में कहते हैं कि बेटा तुम एग्जाम निकालो, IIT गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, MBA कर लो और गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए. तो फिर बाद में आगे चल के तो ये चीजें चेंज ही हो जाती है. और अब तो ये ग्राउंड लेवल पे भी चेंज हो ही गई है. तो ऐसे तो हम लोग कह नहीं सकते कि हाँ अब सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट स्कूल नहीं रहे. नदीम, जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स जो है काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं. इट्स गुड. अगर ऐसा पूरे देश में हो जा रहा है तो ऑब्वियसली सभी पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल्स मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दिल्ली तक सीमित है. बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं हो पाया. हम सभी जानते हैं कि आजकल पब्लिक स्कूलों की क्या हालत है. आप अगर रूरल एरियाज में जाकर के देखेंगे तो ना तो बाउंड्री वॉल है, टॉयलेट्स में ताले लटके होते हैं, जो मिड डे मील का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ना वो ऑफिस में रखा जाता है, उनके टीचर्स के ऑफिस में. तो ये अभी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं. आप देखेंगे उस पब्लिक स्कूल्स के चार दीवारी के अंदर गांव के लोग अपने जानवर बांध दे रहे हैं, काउंटर वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं. बच्चे कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, टीचर्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट because they have kind of government security job type of perception. और दूसरा आपने कहा कि जैसे बाद में IITs वगैरह में लोग जो है प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर जो टॉपिक है हम लोग का वो है पब्लिक स्कूल्स, नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. आई थिंक. आपने अभी पूछ किया कि मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे मतलब हिडन टैलेंट्स को नहीं पहचाना जा रहा है. आपको पता है कि हमारे राजेश सर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, उन्होंने कोई स्टोरी बताई थी क्लास में. मोस्टली जो एमिनेंट पर्सनालिटीज है हमारी फैमिली की वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई है. ऐसा तो कुछ नहीं है कि हाँ मान सकते हैं थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है. लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे भी निकल के आते हैं. जितना उदाहरण हमारे टीचर्स के हैं, बहुत से टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हुए हैं और वो लोग बहुत अच्छा किए हैं अपनी लाइफ में. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनके टैलेंट को सप्रेस किया जा रहा है या फिर उनको अच्छा नॉलेज नहीं दिया जा रहा है.
सेम चीजें हैं, बट हाँ आपने जो डाइवर्सिटी बताई, तो आप बता रहे हो कि इतनी फैसिलिटीज मिलती है तो उसका पैसा भी उतना ही ले रहे हैं ना वो लोग। अगर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो उतना पैसा ही ले रहे हैं, अगर वो पैसा ना लेते और वैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते, आप गवर्नमेंट स्कूल में 10 रुपए दे के 200 रुपए दे करके आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड वही 2 लाख रुपए दे के लाम आइटम की 10 लाख फीस है। यू कैन, आपको लगता है रिक्शा पुलर का बच्चा 10 लाख अफोर्ड कर सकता है? हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा पॉवर्टी है कि लोग 2 वक्त का खाना ही नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने भी कहा कि हमारे सर भी जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ के आते हैं और बहुत अच्छे सक्सेस भी प्राप्त करते हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वहाँ जो हम लोग को पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे वो भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के आए हुए थे, और वो प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कविराज नाम उनका। लेकिन ऐसे लोग हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर वो लोग गवर्नमेंट स्कूल से पब्लिक स्कूल इतना ज्यादा ध्यान दे रहे होते तो फिर वो रिजल्ट्स क्यों नहीं पा रहे? आपने कभी रिजल्ट्स कंपेयर किए हैं प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स की? हमेशा पब्लिक स्कूल्स के रिजल्ट्स ही हाई रहेंगे। ओवरऑल रिजल्ट की बात हो रही है, नॉट 1 or 2 और ओनली फ्यू परसेंट। ओवरऑल जब हम परसेंटेज देखते हैं कि किसका परसेंटेज हाई रहा है, तो हम देखते हैं प्राइवेट स्कूलों का ही परसेंट हाई जाता है, 98%, 99.99% ऐसे करके। और आपने कहा फैसिलिटीज की बात की, हम हाई फीस भी पे करते हैं, तो मैंने बताया ना कि रिक्शा एक पुलर जो है उसका परसेप्शन क्या होता है कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट